آپ کو بتائیں، بیٹے جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ۔ فرار قیدی کی ماں نے ذمہ داری کی مثال قائم کر دی۔ ماں اپنے لگتے جگر حسین نامی قیدی کو واپس جیل لے آئی، درخواست کی بیٹے کو خود واپس لائی ہوں، اس کو مارنا نہیں۔ میرا بچہ ہے، اس نے غلطی کیا ہے، ہم لوگ خود لے کے آئے نا، بیٹا ہمارا ہے، ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، کچھ نہیں کرنا، اس کا غلطی ہے، میرا بیٹا ہے، بیٹا یہ میرا بیٹا ہے، خود لے کے آئی ہے اپنے بیٹے کو، راستے میں بھاگ ہم لوگ لے کے آئے، ہم لوگ والا مالک ہے، اس کو زندگی آزاد ہوگا، کراچی میں امن و امان کی صورتحال، ملیر جیل سے فرار قیدیوں کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی پر اجلاس۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ جی عاجز، اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاؤس میں اجلاس ہو رہا ہے اور وزیر داخلہ نے اجلاس مدد کیا، جس میں آئی جی سندھ اس میں یہ طے ہوا کہ جو امن امان کی صورتحال ہے، وزیر داخلہ نے یہاں پر بتایا کہ یونٹ کے لیے دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے اور ان تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، البتہ جن کے قیدی سرنڈر کریں گے ان کی سزائیں کم ہوں گی۔ بطور وزیر داخلہ ان کے بطور سبھی کی تشکیل کی گئی ہے، کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی، کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی یہ دونوں سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل کی گئی ہے جو اس پورے واقعے کی تحقیقات کرے گی اور یہی کمیٹی فیصلہ کرے گی کی مطلب کی کس چیز کی تمام کارروائی کی جائے۔ ایک کارروائی تو ہو چکی ہے جس میں آئی جیل، غیر جیل اور جیل کے پاس تو کارروائی ہو چکی ہے، البتہ مزید یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ تحقیقات کے بعد اپنی رپورٹ کا پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اب آپ کو براہ راست لے کے چلیں، وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کا تقریب سے خطاب جاری ہے۔ اور یہ ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہیں یہ واقعی ایک بہت بڑا اور گھمبیر ایشو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس پہ صرف ایک بیٹھ کے اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اتفاق رائے ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑا ایشو ہے۔ اٹس اے میٹر آف منٹس، اس پہ ایک اتفاق رائے ہونے کے بعد یہ میرا خیال اگر آپ ایک حقیقت پسندانہ طریقے کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کریں تو یہ حل طلب مسئلے ہیں۔ آلریڈی اس پہ ہماری پورٹ کی طرف سے بریگیڈیئر یونس صاحب، کمشنر صاحب کے ساتھ بھی کئی دفعہ ملاقات ہوئی۔ ابھی چند دن پہلے میری اور ہماری پوری کے پی ٹی کی ٹیم، ہم لوگوں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی ملاقات کی، اور پھر میری گورنر صاحب سے بھی ہوئی، اور میں اپریشیٹ کروں گا مرتضی وہاب صاحب کو، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر میری وہ P3 جو PPP موڈ کے جو ہیڈ ہیں قاسم نوید صاحب، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ تو ہم میری ٹائم انڈسٹری، میری ٹائم منسٹری اور کے پی ٹی ہر طرح سے ہم نے ان کو آفر کیا ہے کہ اس پہ آپ بیٹھیں اور آپ اپنی کنٹریبیوشن کریں، ہماری جو کے پی ٹی ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن کرے گی۔ ہم نے اس سلسلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ٹرکوں پہ بھی بات ہوئی، اور آلریڈی آپ ایلوکیشن کر رہے ہیں تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ان اے وے اے فلانتھروپک اسٹیپ اور یو میک اٹ انٹو اے پبلک فلانتھروپک پارٹنرشپ۔ یہ آپ ذرا اس کے اوپر دھیان دیں۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے جہاں ٹرانسپورٹیشن، آپ کو پتا ہے کراچی میں آئے دن آپ کی بسیں بھی آ رہی ہیں، موٹر سائیکلوں کی تو ایک پورا
जंगल बन गया है। हर चीज आपके वो सारी चीजें आप कह रहे हैं, ट्रके डंपर जिसको देखो वो यहाँ रहे, रॉन्ग वे जा रहा है, राइट वे जा रहा है। उस पे हम मिल के स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का ये पार्किंग स्टैंड बना सकते हैं, जिसमें जो सारा डिजिटलाइज होगा, जिसमें पोर्ट से और जो स्टैंड है वहां पे स्क्रीनों के जरिए इंटरलिंक होएगा और टाइम के हिसाब से हर ट्रक को वहां से मूव करने की इजाजत होगी। और मैं समझता हूं कि ये इस चीज का एक वाहिद हल है और जिसके लिए केपीटी हमेशा की तरह आज भी तैयार है। बाकी सड़कों की बात तो ये कनेक्टिविटी के लिए हमारी काफ़ी चीज़ें चल भी रही हैं। सिंध गवर्नमेंट को भी हमने बहरहाल कहा, उम्मीद है जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भी और मेयर साहब ने भी बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उनका। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जबकि साइट एसोसिएशन में अहदेदारान और सनतकारों का खिताब सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन भी शरीक हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मलीर जेल से कैदियों के फरार का वाकया, जेल इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सरजोड़ कर बैठ गए। फरार कैदियों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां जारी। मजीद जानते हैं सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज, आगाह कीजिएगा। इस वक्त लांडी जेल में मौजूद हूँ और सुप्रिंटेंडेंट जेल यहाँ पर लांडी के हमारे साथ मौजूद हैं अरशद शाह। उनसे कुछ देर पहले भी हमारी बात हुई और उन्होंने ये बताया कि रात को जो वाक़या पेश आया था उसमें एक तो कुदरती आफत वाला मामला था, जलजले के झटके जब महसूस किए गए तो कैदियों को जो है बाहर निकालने की कोशिश भी की गई थी और कुछ कैदियों ने जो है वो कुंडी तोड़ने के बाद जो है बाहर निकलने की कोशिश की, जिसके बाद एक बहुत बड़ा मॉब था जिसको कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल था। क्या हुआ था और इस वक्त क्या सूरत हाल है और अब क्या करने जा रहे हैं जेल काम, इस हवाले से हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बताइएगा कि अब जो सूरत हाल है इसमें मजमूई तौर पर कितने कैदी बाहर हैं, ठीक है, और अब आप लोगों को क्या लाइन ऑफ एक्शन क्या है आगे? देखिए, हमारी जेल से जो है वो तकरीबन 216 कैदी जो है वो कल स्कैप कर गए थे और हमारे एसएसपी साहब मलीर जो हैं वो बैठे हैं और इनकी और हमारे रेंजर्स के कर्नल साहब भी कोशिशों से कोई 78 जो है रीएडमिट हो गए और मज़ीद जो है उसकी लिस्टें बन गई हैं और वो मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दे दी गई हैं और वो जो है वो छापे मार रही हैं और इंशाल्लाह ये तो कराची के कैदी हैं, ये तो हीरोनी है, ये वापस आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें यहाँ कुछ मालूमात भी हुई है कि यहाँ पर कोई कैंटीन थी और कोई मेडिकल स्टोर भी था, उसमें भी सामान लूट के ले गए, इस तरह भी कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तोड़ फोड़ तो हुई है? तोड़ फोड़ हुई है, उन्होंने ऑफिस को नुकसान किया है, हमारे ई कोर्ट का जो सिस्टम है उसको नुकसान दिया है, हमारी सारी ग्रीनरी को नुकसान हुआ है, हमारे जेल के जो गेट्स हैं उनको नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें अब आप लोग मुकदमा दर्ज करवाएंगे वो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत? ज़ाहिर है ये तो दहशतगर्दी का ही केस है, TTC में जाता है। ठीक है। अरशद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां चल रही हैं। काशिफ अब्बासी साहब जो कि SSP मलीर है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, रेंजर्स के अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो जब कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो इंसदादी दहशतगर्दी की दिफात के तहत जेल तोड़ने का और जो लोग फरार हो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी। सड़क पर अदालत लगाने वालों की अहाता अदालत में पिटाई, वकला और शहरियों ने सलमान फारूकी की धुलाई की। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर, पुलिस के हवाले। मुलजिम ने डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में बहन के सामने भाई पर तशद्दुद किया था। पुलिस ने वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। अदालत का आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। खयाबान इत्तेहाद में अमीरजादे सलमान फारूकी के तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान मंजर-ए-आम पर आ गया। मुतासरा शहरी सुधैर का कहना था कि मेरी बहन डिफेंस में दफ्तर में नौकरी करती है। खयाबान इत्तेहाद में दोनों बहनों को लेने जा रहा था, गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मैं माफी मांगता रहा मगर वो मारते रहे। करीब मौजूद शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। सुधैर का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बहनों को लेने जा रहा था जॉब से, तो उनकी ऑफ हो गई थी, वो क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई थी और मैं नॉर्मल स्पीड में था, गाड़ी आई है स्पीड में मुझे हिट करते हुए गई है, मुझे गिराया अलग है,
फिर खड़ा भी नहीं किया और मारा लगे और बात भी नहीं सुन रहे थे। सॉरी बहन लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था। मैं अपनी स्पीड में स्लो आ रहा था, मैं इतनी स्पीड में भी नहीं था, उनकी स्पीड गलती थी और आप वीडियो भी देख सकते हैं। गन पॉइंट दिखाए थे तो उस वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मैं बहनों को लेने जा रहा था जॉब से, तो उनकी ऑफ हो गई थी, वो क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई थी और मैं नॉर्मल स्पीड में था। गाड़ी आई है स्पीड में, मुझे हिट करते हुए गई है, मुझे गिराया लगे, फिर खड़ा भी नहीं किया और मारा लगे और बात भी नहीं सुन रहे थे। सॉरी बहन लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था। मैं अपनी स्पीड में स्लो आ रहा था, मैं इतनी स्पीड में भी नहीं था, उनकी स्पीड गलती थी और आप वीडियो भी देख सकते हैं। गन पॉइंट दिखाए थे तो उस वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया था। ईद के बाद शाहराह भुट्टो को कायदाबाद इंटरचेंज तक खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने अवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो की पेशरफ्त पर इजलास। बोले, शाहराह भुट्टो का शाह फैसल तक कायदाबाद इंटरचेंज का काम तकरीबन मुकम्मल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि शाहराह भुट्टो का शाह फैसल से अब कायदाबाद इंटरचेंज भी मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ये नवीद सुना दी कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही इसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा और कायदाबाद इंटरचेंज को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये इजलास हुआ है शाहराह भुट्टो के हवाले से, जिसमें सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन से मेयर कराची मुर्जा वहाब, कासिम नवीद, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। बताया गया इसको इजलास को कि शाहराह भुट्टो के सेक्शन 1 जाम सादिक से शाह फैसल तक इसका इफ्तिताह हुआ था। अब जाम सादिक ब्रिज से शाहराह भुट्टो के दाखिला पर 50% काम हो चुका है। दिगर 50% काम का येलो लाइन, ये जाम सादिक पुल की बात कर रहा हूँ जो कनेक्टेड है शाहराह फैसल के साथ, शाहराह भुट्टो के साथ, जबकि EVM इंटरचेंज का काम बताया गया कि 100% मुकम्मल हो चुका है। कायदाबाद इंटरचेंज का काम जो है 99% मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला को समो गोट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। ये कायदाबाद से आगे M9 की जानिब जो रोड जा रहे हैं, ये समो इंटरचेंज इसके बीच में बन रहा है। तो बताया गया कि समो इंटरचेंज पे भी काम जो है वो तेजी से जारी है। 4 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे के हिस्से पर 44.4% काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सऊदी अरब जाने वालों को 50% रियायत मिलेगी। PIA का बड़ा ऐलान। दमाम, रियाद और अलकसीम की परवाज़ों के टिकट्स पर 50% रियायत का ऐलान। मुसाफिर 9 जून तक फ़ायदा उठा सकते हैं। तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन हमेशा से ही त्यौहार के मौके पर जो है वो अपने मुसाफिरों के लिए खुशखबरी अनाउंस करती है और इस पर भी ईद उल अज़हा का मौका है तो इस तरह से भी जो है वो कौमी एयरलाइन ने अपने मुसाफिरों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया और खुशखबरी ये है, तर्जुमान किया ये कह रहा है कि सऊदी अरब आने और जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान है। PIA ने पाकिस्तान से तमाम रियाद और अलकसीम की परवाज़ों की टिकट्स पर जो है वो 50% रियायत का ऐलान किया है। सऊदी अरब की फ्लाइट पर रियायत फौरी तौर पर अमल दरामद है, तो सब मुसाफिर 9 जून तक की फायदा उठा सकते हैं। जी खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। सऊदी अरब जाने वालों को 50% रियायत मिलेगी। PIA का बड़ा ऐलान। दमाम, रियाद और अलकसीम की परवाज़ों के टिकट्स पर 50% रियायत का ऐलान। मुसाफिर 9 जून तक फ़ायदा उठा सकते हैं। तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन हमेशा से ही त्यौहार के मौके पर जो है वो अपने मुसाफिरों के लिए खुशखबरी अनाउंस करती है और इस पर भी ईद उल अज़हा का मौका है तो इस तरह से भी जो है वो कौमी एयरलाइन ने अपने मुसाफिरों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया और खुशखबरी ये है, तर्जुमान किया ये कह रहा है कि सऊदी अरब आने और जाने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान है। PIA ने पाकिस्तान से तमाम रियाद और अलकसीम की परवाज़ों की टिकट्स पर जो है वो 50% रियायत का ऐलान किया है। सऊदी अरब की फ्लाइट पर रियायत फौरी तौर पर अमल दरामद है, तो सब मुसाफिर 9 जून तक की फायदा उठा सकते हैं। जी खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा।